Hello bachcho, a very good evening to all of you. Today I Neha will be teaching you the chapter number 7 of your section number 1, that is why we travel. अब ये chapter start करने से पहले या राइटर का इंट्रोडक्शन देने से पहले आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने जिंदगी में तो ट्रैवल किया होगा, राइट? ट्रैवल इज नथिंग बट जर्निंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो ट्रैवल करते समय आप क्या चीजें सीखते हैं, क्या जानते हैं, उसी का कुछ एक्सट्रैक्ट बना के आपका ये चैप्टर बना दिया गया है. सो इट इज नॉट अ स्टोरी बेस्ड चैप्टर या फिर आपको कहीं सस्पेंस या क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा. दिस इज जस्ट द ओपिनियन ऑफ द राइटर शेयर्ड अबाउट ट्रैवलिंग विद यू. ओके, सो इस थॉट को अपने माइंड में रखते हुए लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर राइटर, दैट इज सिद्धांत पीको राघवन अय्यर. ओके, so he was born in 1957 at Oxford, England and is known as Pico Iyer. अब देखो यहाँ पे अय्यर जो नाम है वो थोड़ा इंडियन है एंड जो पीको नाम है वो थोड़ा सा फॉरेनर है, बिकॉज he was born at Oxford, England and he was a British born American essayist and novelist and is best known for his traveler writing. तो बॉर्न कहाँ हुए थे? तो ब्रिटेन में बॉर्न हुए थे, बट मोस्ट ऑफ द लाइफ कहाँ पे जिए थे? अमेरिका में जिए हुए थे. एंड इनका जो राइटिंग का स्पेशलिटी है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग. ओके, he was awarded the famous Guggenheim Fellowship for Creative Arts in 2005 and has won the accolade of Honorary Doctor of Humane Letters by the Chapman University. So these are the some awards that he's been awarded. Okay, he has authored several books including Video Night in Kathmandu 1988, The Lady and the Monk 1991, The Global Soul 2000 and The Man Within My Head 2012. So these are the some of the books written by your writer in their respective years. Okay, he was working as an essayist for Times since 1986. Times आपने न्यूज़पेपर का सुना ही होगा, दिस इज अ न्यूज़पेपर कंपनी. ओके, तो वहां पे वो एसेसिस्ट का काम कर रहे हैं सिंस 1986. He also publishes regularly in the New York Review of Books. तो अपने अलग अलग न्यूज़पेपर में ये अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, and the New York Times and other renowned publications. So most of the time, most of the life he has lived in America, although he is British born. Okay, अब देखो, this was all about your writer. Now let us start with the chapter introduction, what we will learn in this particular chapter. Okay, so in this classic essay, Why We Travel, Pico Iyer explores the reason for his passion to travel and share them with the readers. जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये आपको स्टोरी बेस्ड चैप्टर नहीं दिया गया. This is just the opinion, thoughts, ideas of the writer shared with you. Okay, ये सिंपली एक एक्सट्रैक्ट है जहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां पर आपको राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं. Why we travel. Okay, he himself liked traveling, that is why he has shared thoughts about traveling. He quotes famous writers and put forth his own observation while probing into his own instinct to travel. तो यहाँ पे ये अलग अलग बड़े बड़े लोगों के कोट्स भी मेंशन करेंगे and how he has experienced that particular quote in his lifetime, वो भी हमें इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में बताएंगे. Enormously interesting, the extract is equally inspiring for the readers who are looking for the adventures in their lives. तो जिन बच्चों को एडवेंचर करना पसंद है ना, एक जगह से दूसरे जाना, सोलो ट्रैवल करना, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना, तो इनके लिए तो ये बेटा सोने पे सुहागा वाला चैप्टर हो गया. क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपने कभी जिंदगी में अकेले कभी ट्रैवल किया होगा ना, तो यू वुड हैव फेल्ट कि कैसा लगता है, क्या होता है, हमारे इंस्टिंक्ट क्या रहता है, हमारा माइंड कैसा रहता है, वही सारी चीजें आपको बताई गई है इस चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट with our chapter Why We Travel. So we travel initially to lose ourselves
and we travel next to find ourselves. देखो opposite statements, एक ट्रैवल करते हैं अपने आप को खोने के लिए एंड वही ट्रैवल करते हैं अपने आप को पाने के लिए. ओके, दिस इज अ वेरी फिल्मी लाइन which is the starting of your chapter. We travel to open our hearts and eyes and learn more about the world than our newspapers will accommodate. न्यूज़पेपर में कितना भी छाप लो उतना कम है जब तक आप वो जगह खुद जाके एक्सप्लोर ना करो. तो क्यों ट्रैवल करते हैं? ताकि हम अपना माइंड, आंख, कान सब खोल सके, ताकि हम उस नेचर को फील कर पाए, उस जर्नी को समझ पाए. We travel to bring what little we can in our ignorance and knowledge to those parts of the globe whose riches are differently dispersed. कहने का मतलब क्या? हम उन पार्ट्स को एक्सप्लोर कर जाते हैं, चाहे वो इंटेंशनली हो या चाहे वो इनइंटेंशनली हो, जो इस दुनिया से पूरे अलग है, जिनका रिच वैरायटी है, रिच कल्चर है, लेकिन ग्लोब को पता ही नहीं है. इसीलिए हम ट्रैवल करते हैं. अब तक देखो आपने समझा होगा कि आपको यहाँ पे अलग अलग वेरियस रीजंस बताए गए हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्रैवल और व्हाई वी ट्रैवल. तो सिंपली आपका ये ना क्वेश्चन है चैप्टर का, ये जो हेडिंग है, दिस इज जस्ट अ सिंपली क्वेश्चन कि व्हाई वी ट्रैवल, क्यों ट्रैवल करते हैं, और उसका आंसर ये आपका पूरा चैप्टर है. तो दिस इज जस्ट अ सिंपल एक्सट्रैक्ट दैट यू हैव टू स्टडी एंड फील इट. ओके, ये चैप्टर भले ही आप अभी ना फील कर पाओ क्योंकि मे बी आपने कभी अकेले ट्रैवल ना किया हो, बट एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ ये सारी बातें आपको याद आएंगी. और याद कर लो बच्चे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके, सो लेट अस मूव ऑन विद द चैप्टर. एंड वी ट्रैवल इन एसेंस टू बिकम यंग फूल्स अगेन, to slow the time and get taken in and fall in love once more. ठीक है, क्यों ट्रैवल करते हैं? ताकि हम वापस एक नन्हे मुन्ने से बच्चे बन जाए, एक माइंड फ्रेश हो जाए, जैसा हम चाहते थे या जैसा हम सोचते थे वो भूल के हम नई थिंकिंग, नई माइंडसेट की शुरुआत करें. ओके, एंड टू फॉल इन लव वंस मोर. ओके, जो हमारी जिंदगी बड़ी बोरियत से भर गई है, बड़ी मोनोटोनस हो गई है, तो हम ट्रैवल करते हैं ताकि हमारी जिंदगी वापस फ्रेश बन जाए. ओके, the beauty of this whole process was best described perhaps before people even took to frequent flying by George Santayana in his lapidary essay. तो ये इसका आंसर कि why we travel और what happens when we travel वो हमें किसने दिया है? जॉर्ज सत्याना. जब लोग इतनी ज्यादा फ्लाइंग करते भी नहीं थे, फ्लाइंग कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते भी नहीं थे, एंड ही सेज दैट इन हिज एसे. कौन सा एसे? द फिलॉसफी ऑफ ट्रैवल. ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी बता दी गई हैं बाय जॉर्ज व्हेन पीपल डिडंट इवन नो अबाउट ट्रैवलिंग, कि ट्रैवलिंग करते कैसे या क्या होता है. सिर्फ अपने ऑफिशियल काम के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम करते थे, बट इतनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग उस जमाने में तब नहीं होती थी जब इनने ये अपना फिलॉसफी ऑफ ट्रैवल लिखा था. ओके, we need sometimes, the Harvard philosopher wrote, to escape into open solitudes, into aimlessness, into the moral holiday of running some pure hazard in order to sharpen the edge of life, to taste hardship and to be compelled to work desperately for a moment at no matter what. तो ये क्या कहते हैं कि हम क्यों ट्रैवल करते हैं? खोने के लिए, अपने आप को अकेला पाने के लिए. इनटू सॉलिट्यूडनेस कहने का मतलब जहां पे कोई नहीं है, सिर्फ हम है. इनटू एमलेसनेस कहने का मतलब हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, वेयर डू वी हैव टू गो, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान. या फिर ऐसी जगह पे जहां हम डेंजर इंटेंशनली बुला रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी में थोड़ा टेस्ट आए बच्चों, थोड़ा मजा आए. ठीक है, जीना इसी का नाम है जब हम ट्रैवलिंग करते हो. ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि ये ट्रैवलिंग करना जरूरी होती है, इनटू सॉलिट्यूडनेस, इनटू एमलेसनेस, ताकि हमें पता चले कि लाइफ के डाउन जो होते हैं उसके कुछ अप्स भी होते हैं जिसका मजा ही कुछ और होता है. ओके, लाइफ का अगर डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है, तो उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं. तो लाइफ को समझने के लिए हम ट्रैवलिंग करते हैं. ओके, ताकि हमें पता चले कि ये है जिंदगी, ये है नेचर. ओके,
few of us ever forget the connection between travel and travel. ठीक है, अब दो वर्ड आपके यहाँ पे आते हैं which are sometimes synonymously used, लेकिन their meanings are very different. उनके meanings जो होते हैं वो पूरी तरह से different होते हैं, और वो दो वर्ड आपके कौन से हैं? Travel and travel. Travel in that sense guide us towards a better balance of wisdom and compassion of seeing the world clearly and yet feeling it truly. अब देखो travel का मतलब क्या है? ट्रैवल इज अ जर्नी जो आपको होशियार बनाती है, थोड़े से कंपैशनेट बनाती है, आप में कुछ जज्बा लाती है ताकि आप नेचर को, इस धरती को, अपनी जिंदगी को समझ सको, है ना, इन चीजों को आप फील कर सको. दिस इज ट्रैवल. फॉर सीइंग विदाउट फीलिंग, देख तो रहे हो लेकिन उसको फील नहीं कर रहे हो, कैन ऑब्वियसली बी अनकेयरिंग. उसका कोई फायदा नहीं होगा. आप अलग अलग जगह जाते हो, राइट, दिन में आपके अलग अलग जगह होते हैं, लेकिन उन जगह को आप फील करते हो क्या? नहीं, सिर्फ देखते हो और निकल जाते हो. दैट इज नॉट ट्रैवलिंग. व्हाइल फीलिंग विदाउट सीइंग कैन बी ब्लाइंड. लेकिन आप फील कर रहे हो लेकिन देख नहीं पा रहे हो, दैट इज, उसको सिंपली कहेंगे अंधा. अब मैं लंदन के बारे में सोच रही हूँ, या आयरलैंड के बारे में सोच रही हूँ, या ग्रीनलैंड के बारे में सोच रही हूँ कि वाह क्या नजारे होंगे, लेकिन सिर्फ फील कर रही हो और देख नहीं पा रही हो, तो दैट इज सिंपली ब्लाइंड. ओके, लेकिन अगर देख पा रही हो और फील नहीं कर रही हो तो दैट इज अनकेयरिंग. मतलब दोनों का ही कोई कनेक्शन नहीं बनता है. अगर आपको ट्रैवल का मजा लेना है तो आपको देखते हुए फील करना पड़ेगा, ऐसे हमारे राइटर कहना चाहते हैं. Yet for me, the first great joy of traveling is simply the luxury of leaving all my beliefs and certainties at home and seeing everything I thought I knew in a different light and from a crude angle. अब हमारे राइटर क्या बोलते हैं कि मेरी तरफ से, मेरे मायने में, मेरी ओपिनियन में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रैवलिंग इज नथिंग बट लीविंग ऑल योर टेंशंस, चिंता, जो भी आपकी फिक्रें हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, उनको पीछे छोड़ के एक ऐसी जगह जाना जहां ये चीजें आपके पीछे ना लगी हो, आपके माइंड में ना हो, आपका माइंड एकदम इन चीजों से अलग हो, एकदम छूटा हो, एकदम खाली हो, ताकि आपको वो लग्जरी मिल सके, वो मजा आ सके जिंदगी में. ओके, और हर चीज को आप एक अलग एंगल में देख पाओ जैसा आपने कभी सोचा भी ना हो, उसका मतलब है ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू आवर राइटर. ओके, अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवल या टूरिस्ट या ट्रैवलर क्या होता है. ठीक है, so it is fashionable nowadays to draw distinction between the tourist and the traveler. Perhaps the real distinction lies between those who leave their assumptions at home and those who don't. अब देखो यहाँ पे ना दो वर्ड्स बड़े सिनोनिमसली यूज होते हैं, टूरिस्ट एंड ट्रैवलर. अब देखो हमारे राइटर बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन देते हैं बिटवीन दीज टू पीपल कि कौन टूरिस्ट होता है, कौन ट्रैवलर होता है. सो टूरिस्ट आर दोज हु लीव देयर assumptions, take their assumptions with them while traveling, and travelers are those who leave all their assumptions at home and travel the journey with a new perspective. ठीक है, सो आप देखो इनका, देखो क्लियर डिस्टिंक्शन देखते हैं. Among those who don't, a tourist is just someone who complains. तो टूरिस्ट वो है जो अलग अलग जगह पे जाने के बाद सीधा कंप्लेन करते रहता है, क्या यार यहाँ तो कुछ भी घर जैसा नहीं है, nothing here is the way it is at home, कुछ भी सेम नहीं है, ये अलग लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो घर में मजा आता. तो वो जो कंप्लेन करते रहते हैं ना जर्नी पे, तो उसको बोलेंगे टूरिस्ट. While a traveler is one who grumbles, everything here is the same as it is in Cairo और कुस्को और काठमांडू. लेकिन ट्रैवलर उसको बोलेंगे जो दुनिया में किसी भी जगह पे क्यों ना हो, लेकिन हर जगह उसको वही पीसफुलनेस फील हो, वही ट्रैंक्विलिटी फील हो, वही ब्लिसफुलनेस मिले, मतलब वही खुशी मिले, वही शांति मिले जो उसको घर पे मिलती है. ठीक है, सो दिस इज द एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रैवलर एंड टूरिस्ट. इट इज ऑल वेरी मच द सेम. कहने का मतलब हाँ मान सकते हो मीनिंग थोड़ा सा सेम है, बट इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है जो मैंने आपको अभी बताया. बट फॉर रेस्ट ऑफ अस द सोवरेन फ्रीडम of travelings
come from the fact that it whirls you around and turns you upside down and stands everything you took for granted on its head. कहने का मतलब क्या है कि ट्रैवलिंग आपको उन चीजों का वर्थ बताता है, उन चीजों का इंपॉर्टेंस बताता है जो आप हमेशा से फॉर ग्रांटेड लेके आए हो। जैसे घर में पीने का पानी बड़ी आसानी से मिल जाता है, सीधा गए किचन में फिल्टर में से पानी निकाला एंड पी लिया। लेकिन कभी कभी आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हो जहां पे पानी आपको मिलता ही नहीं, आप घंटों प्यासों चल रहे हो, एंड देन यू नो द वर्थ ऑफ दैट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो ये चीज आपको ट्रैवलर समझाता है कि हमारी लाइफ में जो छोटी सी भी चीजें होती है ना, उसका एक्चुअली कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, ये हमारी जिंदगी को ट्रैवलिंग करने पे जब हम चलते हैं तो वो हमें पूरी तरह से घुमा देता है। वर्ल्ड्स यू अराउंड कहने का मतलब पूरा 360 डिग्री रोटेशन करवा देता है, और जो भी चीज हम ग्रांटेड लेते थे उनका हमें इंपॉर्टेंस समझा देता है। If a diploma can famously be a passport to a journey through hard realism, a passport can be a diploma for a crash course in cultural relativism. अब ये जो लाइन है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड में पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उनका जो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर जब हम डिप्लोमा को पासपोर्ट कह रहे हैं, कहने का मतलब वो हमने प्रूव दिया कि यस आई हैव स्टडीड इन दिस कंट्री। ओके, तो दिस इज द मीनिंग कि मैंने वो सारी हार्डशिप्स फेस की हैं, सारी डिफिकल्टीज फेस की हैं। लेकिन जब आप पासपोर्ट को एज अ डिप्लोमा यूज करते हो, दैट इज जस्ट अ क्रैश कोर्स फॉर रिलेटिविज्म कि आपने जिंदगी कितनी देखी है या कितनी नहीं देखी है। ओके, and the first lesson we learn on the road while traveling, the first lesson you get to hit with is whether we like it or not, is how provisional and provincial are the things we imagine to be universal. कहने का मतलब जो चीज हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, जो जगह हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो हमें ट्रैवलिंग करते समय पता चलता है कि वो कितनी छोटी सी है। इट इज जस्ट अ स्पेक इन द यूनिवर्स। ओके, हम जिसको बहुत बड़ा मानते हैं, जैसे मान लो आप बहुत ही मटीरियलिस्टिक पर्सन हो एंड यू ट्रीट योर आईफोन एज योर गॉड कि भाई नहीं मेरे पास आईफोन है। लेकिन जब आप बाहर दुनिया में ट्रैवल करोगे तो यू गेट टू नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आईफोन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है। तो वो जो आपके लिए जो बहुत बड़ी मायने चीज रखती थी, मायने होती थी, मायने मानते थे आप उसको, दिस इज जस्ट अ प्रोविंशियल चीज जो आपको ट्रैवलिंग करते समय पता चलता है दैट इट इज बहुत ही छोटी चीज है जो है दुनिया में। ठीक है, so we travel then in part just to shake up our complacencies by seeing all the moral and political urgencies, the life and death dilemmas that we seldom have to face at home. कहने का मतलब जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें अलग अलग सिचुएशंस झेलनी पड़ती है। उन अलग अलग सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है, कब क्या करना चाहिए, उसका हमें मतलब समझता है। लाइफ टू डेथ मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन आती है जो हमें घर पे बैठने पे बड़ी मुश्किल से ये सिचुएशन देखने को मिलती है। घर पे बैठे रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ना ही आपका माइंड डेवलप होगा, ना ही आपको वो एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग करोगे तब आपको समझेगा कि बाहर दुनिया की चीजें चलती कैसे, कैसे दुनियादारी निभाई जाती है। ओके, and we travel to fill in the gaps left by tomorrow's headline. जो भी हम सोचते हैं उसको फिल करने के लिए हम ट्रैवल करते हैं। When you drive down the streets of Port-au-Prince, for example, अब देखो हमारे जो राइटर है वो हर जगह ट्रैवल कर चुके हैं, तो जहां जहां जिस जिस जगह पे उन्होंने जो जो चीजें फील की है वो आपको इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है। So when you drive down the streets of Port-au-Prince, for example, where there is almost no paving, your notions of the internet and no world order grows usefully revised. कहने का मतलब जहां पे आपको फैसिलिटीज बहुत कम मिलती है। Travel is the best way we have of rescuing the humanity of places and saving them from abstraction and ideology. कहने का मतलब जिन चीजों के बारे में हम न्यूज़पेपर में सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, हाँ जो भी लिखा गया वो ही जानते हैं, लेकिन जब तक आप उस जगह पे खुद नहीं ट्रैवल करते हो तब तक आपको उस जगह की एक एक चीज पता नहीं चलती है। ऐसा हमारे राइटर कहते हैं। वहां के लोग कैसे हैं, वहां का सिस्टम कैसा है, कैसी चीजें वहां पे चलती है, फॉलो होती है, कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल आपको तभी पता चलेंगी जब आप ट्रैवल करेंगे। ओके,
and in the process we also get saved from extraction ourselves and come to see how much we can bring to the places we visit and how much we can become a kind of carrier pigeon, an anti-federal express if you like, in transporting back and forth what every culture needs. कहने का मतलब ट्रैवलिंग का एक दूसरा इंपॉर्टेंस होता है कल्चरल एक्सचेंज। कहने का मतलब मैं इंडियन हूं, अब जाके मैं जापान में सेटल हो रही हूँ, ठीक है, तो मैं इंडियन कल्चर का बारे में जो एक्सपोजर होगा वो जापानीज लोगों को दूंगी, जापानीज लोग मेरे इंडियन कल्चर के बारे में सीखेंगे एंड उन जापानीज से मैं जापानीज कल्चर सीख के अपने इंडियन लोगों को बताऊंगी। कहने का मतलब जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो वी आर लाइक अ कैरियर पिजन, जो यहाँ का कल्चर, अपने देश का कल्चर दूसरे देश में लेके जाते हैं एंड दूसरे देश का कल्चर अपने देश में लेके आते हैं। आई फाइंड दैट आई ऑलवेज टेक माइकल जॉर्डन पोस्टर्स टू कियोटो एंड ब्रिंग वूवन इकिबाना बास्केट्स बैक टू कैलिफोर्निया। तो जब ये कैलिफोर्निया में रहते थे देन ही वेंट टू ट्रैवल जापान, तो जब वो जापान में गए तो अपना साथ वो माइकल जॉर्डन का पोस्टर लेके गए जो कि कैलिफोर्निया या अमेरिका में बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो अपना पोस्टर लेके गए एंड आते समय वहां से वो क्या लेके आए, इकिबाना विच आर वूवन बास्केट, जो जापानीज का एक बहुत ही ज्यादा फेमस आर्ट है, उसको उठा के लेके आए। तो इससे क्या हुआ बेटा, यहाँ का कल्चर दैट इज अमेरिका का कल्चर वो जापान में लेके गए एंड जापान का कल्चर वो बैक टू अमेरिका लाए। इस तरह से हम एक कैरियर पिजन का काम करते हैं जब हम ट्रैवलिंग करते हैं। These are the some reasons that the writer has told us about while answering the question of why we travel. But more significantly, we carry values and beliefs from news to the places we go, and in many parts of the world, we become walking video screens and living newspapers, the only channels that can take people out of the censored limits of their homelands. अब देखो जैसे आपके एरिया का जो सीन है या जिस तरह से काम करता है वहां पे लोगों के पास कुछ जानने के लिए मीडिया होता है, जैसे रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, लेकिन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जहां पे हमारी सैटेलाइट या सिंपली कहूं हमारे न्यूज चैनल्स पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो हम अपने बिलीव्स, हम अपने वैल्यूज, हम अपने मॉरल्स वहां पे लेके जाते हैं एंड विद दैट वी कैरी न्यूज, जो बाकी दुनिया के बारे में हम उनको बताते हैं एंड उनके बारे में हम बाकी दुनिया को बताते हैं। यहाँ पे बोला गया वी बिकम वॉकिंग वीडियो स्क्रीन्स, कहने का मतलब हम एक वीडियो स्क्रीन्स की तरह होते हैं जब हम उन जगह पे ट्रैवल करते हैं, ताकि क्यों, क्योंकि हमसे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम पूरी दुनिया को बताते हैं। ओके, in closed or impoverished places like Pagan or Lhasa or Havana, we are the eyes and ears of the people we meet, their only contact with the world outside. ये जो impoverished places होते हैं जहां पे poverty बहुत ज्यादा होती है, जहां पे लोगों के पास facilities बहुत कम होती है, वहां हम लोगों के आंख और कान बन जाते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको पूरी दुनिया के बारे में वहां जाने पे बताते हैं। And very often the closest, quite literally, they will ever come to Michael Jackson and Bill Clinton. कहने का मतलब अलग अलग लोगों के बारे में उनको तब पता चलेगा जब हम उनको बताएंगे ना बेटा, this is the closest they can come to these people, है ना। जब तक हम ट्रैवल नहीं करेंगे वो तो अपनी दुनिया को छोड़ के बाहर निकलेंगे नहीं। They are very impoverished, full of poverty, मतलब उनके पास ये इतनी फैसिलिटीज है ही नहीं कि वो बाहर जाके दुनियादारी के बारे में जान पाए। So we are the people, we are the medium through which they can know about Michael Jackson and Bill Clinton. Not the least of the challenges of travel, therefore, is learning how to import and export dreams with tenderness. कहने का मतलब क्या कि ये जो चैलेंज है वो मतलब सबसे बेसिक चैलेंज कैसा होता है ट्रैवलिंग करने का, किस तरह से हमें अपने ड्रीम्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना होता है या उन लोगों के ड्रीम्स को हमें पूरी दुनिया के बारे में बताना होता है।
By now, all of us have heard too often the old Proust line about how the real voyage of discovery consists not in seeing new places but in seeing with new eyes. अब देखो, हमने Proust की ये saying तो कही है कि ट्रैवलिंग, ये जो जर्नी होती है, ये जो वोयेज होता है, ये नहीं कि हम अलग अलग जगह को सेम नजरिए से देखें. दैट इज सेइंग द सेम प्लेस विद अ न्यू परसेप्शन. ओके, मतलब सीइंग विद न्यू आईज. Yet one of the subtler beauties of traveler is that it enables you to bring new eyes to the people you encounter. कहने का मतलब एक रेयर ब्यूटी, डिफिकल्ट टू ग्रैस्प वाली जो ब्यूटी होती है वो ट्रैवलिंग की क्या होती है कि हम लोगों को अलग अलग चीजें बताते हैं जिनसे भी हम मिलते हैं while traveling that journey. Okay, thus even as holidays help you appreciate your own home more, not least by seeing it through a distant admirer's eyes, that help you bring newly appreciative distant eyes to the places you visit. कहने का मतलब जब भी आप ट्रैवल करते हो या घर से बाहर रहते हो और छुट्टियों के लिए घर पे आते हो तो आपको घर में मजा आता है ना, राइट? मतलब लेकिन आपके लिए वो घर ही था जिसमें आप पहले रहते थे. लेकिन जब कोई दूर से इंसान देख रहा होगा उस सेम घर को तो वो एक अलग नजरिए से देख रहा होगा, आपको उसमें इंक्लूड करके देख रहा होगा. लेकिन जब आप उस घर में एंटर करते हो तो आप उस घर को अलग नजरिए से देखोगे. कहने का मतलब हर एक जगह को नोटिस करने का परसेप्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन अलग अलग इंडिविजुअल के माइंडसेट पे होता है. You can teach them what they have to celebrate as much as you celebrate what they have to teach. कहने का मतलब आप उनको बता सकते हो कि क्या क्या चीजें सेलिब्रेट करनी है and equally they can tell you what do you have to celebrate. किस चीजों का मजा लेना चाहिए, कैसे enjoy करना चाहिए. So this I think is how tourism, which so obviously destroys cultures, can also resuscitate or revive them. How it has created new traditional dances in Bali and caused craftsmen in India to pay new attention to their works. कहने का मतलब देखो, जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं या जब हम बाहर देश में रहने जाते हैं वापस इंडिया में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं इंडिया का कल्चर भूल गया, ये तो वेस्टर्न बन गया, ये तो जापानी बन गया, ये तो अमेरिकन बन गया, क्योंकि हम उनका कल्चर अपने अंदर ले लेते हैं लेकिन सिर्फ और इंडिया का कल्चर भूल जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जर्नी करने पे या ट्रैवल करने पे हम अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ये भी हो सकता है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसा रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि हम वापस अपने कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं या वापस हम उसको एक्शन में ला रहे हैं. कहने का मतलब जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनके कल्चर्स तो हम देखते ही देखते हैं एंड देन वी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट या हाउ सिग्निफिकेंट आवर ओन कल्चर है. तो ये सिर्फ टू वे प्रोसेस है बेटा. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम बाहर देश में जाते हैं तो हम कल्चर अपना भूल जाते हैं. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम अपने कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं, उसको जो हम भूल गए थे वापस रिवाइव करते हैं. ओके, thus travel spins us around in two ways at once. कहने का मतलब दो डायरेक्शन में घुमाता है लेकिन एक ही बार में. ट्रैवल हमें दो डायरेक्शन में घुमाएगा इन एट वंस, एक ही टाइम में. It shows us the sights and values and issues that we might ordinarily ignore. वो चीजें हमें दिखा दे जो हम ऑर्डिनरी लाइफ में इग्नोर कर दे, जिस पे हम ध्यान भी ना दे. But it also more deeply shows us all the parts of ourselves that might otherwise grow rusty. लेकिन ये हमारे माइंड में ऐसे हमें कॉर्नर पे ले जाता है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जो कि बाई चांस ऐसा हो सकता था कि हम कभी उसको यूज करते ही ना और वो पार्ट ऑफ द सिस्टम जो हमारा है वो कभी रस्ट हो जाता या खराब हो जाता. कहने का मतलब आप बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते ही करते हो लेकिन आप अपने माइंड, अपने अंदर बॉडीली सिस्टम को भी एक्सप्लोर करते हो, जो कि आप ट्रैवलिंग नहीं करते तो आप कभी उसको यूज करते ही नहीं. ओके,
फॉरेन ट्रैवलिंग टू अ ट्रूली फॉरेन प्लेस। ट्रूली फॉरेन प्लेस कहने का मतलब जहां पे आप कभी पहले गए नहीं हो, जहां आपको इतना सा भी नहीं पता उस जगह के बारे में। We inevitably travel to moods and states of mind and hidden inward passages that we would otherwise seldom have cause to visit। कहने का मतलब जब हम नई जगह पे ट्रैवल करते हैं तो बाहर तो ट्रैवल कर ही रहे हैं, आउटर वर्ल्ड में ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग दोज पैसेजेस इन आवर माइंड जो हम रेयरली कभी उस ट्रैवल पैसेज पे जाते हैं अपने माइंड के अंदर। ओके, So on the most basic level, when I am in Tibet, ये कहां की कहानी बता रहे हैं हमें? तिब्बत की कहानी बता रहे हैं। Though not a real Buddhist, ये खुद बुद्धिस्ट है नहीं। I spend days on end in temples, temples में दिन रात वो वहीं पे रहते हैं। क्यों? Listening to the chant of sutras। जब आप monks visit करेंगे ना बच्चों, बुद्धिस्ट के, तो वहां पे एक ट्यून टंग घंटी होती है जो बजती रहती है, एंड वहां पे कुछ फ्रेजेस होते हैं जो चलते रहते हैं, वहां के मॉन्क्स बोलते रहते हैं। Those are so peaceful to listen, so peaceful, you should try this at once। ठीक है, कभी तो अपने लाइफ में एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। तो आप ये जब तिब्बत में गए थे तो वहां पे वो जो मॉन्क्स की टेम्पल्स होते हैं ना बेटा, तो वहां पे वो दिन रात बैठे रहते थे सिर्फ उस म्यूजिक को, जो कि हम सूत्रास बोलते हैं, उनको सुनते रहते थे। आई गो टू आइसलैंड टू विजिट द लूनार स्पेसेस विद मी एंड इन द अनकैनी क्वाइट्यूड एंड एम्प्टीनेस ऑफ दैट वास्ट एंड ट्रीलेस वर्ल्ड। फिर वो आइसलैंड ट्रैवल करते हैं जहां पे लंबे लंबे पैचेस ऑफ लैंड है जहां कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आप अकेले खड़े होते हो, वो सारी चीजें आप फील करते हो। टू टैप पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ जनरली ऑब्सक्योर्ड बाय चैटर एंड रूटीन, एंड सिर्फ वो बाहर की जगह पे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो अपने माइंड के भी उस डेजर्ट में चले जाते हैं जो कि वो खुद भूल चुके थे अपने डेली रूटीन एंड मोनोटोनस लाइफ के वजह से। ओके, सो वी ट्रैवल देन इन सर्च ऑफ बोथ सेल्फ एंड एनॉमिटी। कहने का मतलब हम अपने आप को ढूंढने के लिए भी ट्रैवल करते हैं, अपने आप को भी खोने के लिए, अपने आप को भूलने के लिए भी ट्रैवल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इन फाइंडिंग द वन वी अप्रीहेंड दी अदर। कहने का मतलब जब हमें एक के बारे में पता चलता है तो हमें दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चलती है, एंड जब हमें दूसरे के बारे में पता चलता है तो हमें पहले की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अपने बारे में आपको पता चलता है व्हेन यू ट्रैवल। ये सिंपल स्टेटमेंट में मैं समराइज करूंगी जो अब तक हमने पढ़ा। अब देखो आगे क्या होता है। Abroad, when we wonderfully free of caste and job and standing, we are, as Hazlitt puts it, just the gentleman in the parlor, and people cannot put a name or tag to us. And precisely because we are clarified in this way and freed of inessential labors, we have the opportunity to come in contact with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when far from home। देखो, जब आप घर पे रहते हो तो आपके ना जिंदगी पे बेस्ड लोग कुछ टैग्स देते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में फेल हो गए थे तो आपको फेलियर बोलते हैं, आपके बैकग्राउंड की वजह से आपको टैग्स देते हैं, आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी की वजह से टैग देते हैं। लेकिन जब आप नए जगह पे जाते हो, एकदम जहां पे आपको किसी के बारे में नहीं पता है और लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, तो वहां पे आप फ्री ऑफ टैग्स होते हो। आपके पीछे कोई बात ही नहीं है चल रही होती दिमाग में कि लोग ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे। आप एकदम फ्रेश फील करते हो, मोस्ट अलाइव फील करते हो, बिकॉज नो वन कैन जज यू एज नो वन नोज अबाउट यू। लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है तो वो जज किस बेसिस पे करेंगे। सो हमारे जो हैजल्ट है इस सिचुएशन को एक फ्रेज में पुट फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज जेंटलमैन इन द पार्लर। कहने का मतलब आप किसी शॉप में जाते हो जहां पे अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग वहां पे काम करने वाले, तो जिनको फर्क नहीं पड़ता, आते हो आप अपने जो भी काम होता है वो करवाते हो और चले जाते हो। सेम वे इज वाइल यू फील व्हेन ट्रैवलिंग। ठीक है, तो यही चीज आप ट्रैवल करते हुए फील करोगे। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, उनको आपके बारे में पता नहीं है, तो यू फील मोस्ट अलाइव in that moment. Abroad is a place where we stay up late, follow impulse and find ourselves as wide open as when we are in love। कहने का मतलब जब आप प्यार में होते हो तो कैसे आपको हर चीज एकदम हर जगह फूल खिलते हुए नजर
आते हैं, है ना, लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही अगर फील होगा जब आप अलग अलग जगह ट्रैवल करोगे। कहने का मतलब जो मन आया वो करोगे, जितने देर तक जगना उतनी देर तक जगोगे, आपको कोई लिमिटेशन डालने वाला नहीं होगा, आप पे कोई बाउंड्री सेट करने वाला नहीं होगा जब आप ट्रैवलिंग करते हो। वी लिव विदाउट अ पास्ट और फ्यूचर। नए जगह पे जाते हो तो ना ही आपको कोई पास्ट है ना ही आपका फ्यूचर है, जो भी आपका प्रेजेंट है वो ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट है, जो आपको खुद ही डिसाइड करना है। For a moment at least, and ourselves up for grabs and open to interpretation. And जिस रास्ते आप जाओगे वैसा आप अपना पास्ट क्रिएट करते जाओगे। We even may become mysterious to others. किसी के लिए हम थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, मिस्टीरियस हो चुके हैं ना, छुपे रुस्तम टाइप हो सकते हैं to others at first and sometimes to ourselves, and as no less a dignitary than Olive Cromwell once noted. तो Olive Cromwell क्या बोलते हैं? A man never goes so far as when he doesn't know where he is going. इंसान तब तक बहुत दूर नहीं जा सकता जब तक उसको पता ही ना हो कि वो कहां जा रहा है। मतलब आपको डेस्टिनेशन फिक्स करना ही नहीं है, आपको सिर्फ जर्नी पे ध्यान देना है, तब जाके आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चलेगा, अपने सुपर पावर्स के बारे में पता चलेगा। अगर आप एक डेस्टिनेशन सेट कर देते हो, दैट इज यू आर सेटिंग अ बाउंड्री फॉर योरसेल्फ कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, दैट इज द लास्ट एम। यू हैव टू कीप द डेस्टिनेशन अननोन टू योरसेल्फ, ताकि आपको खुद की एबिलिटीज, अपने खुद के पावर्स के बारे में पता चल सके। There are of course great dangers to this as to every kind of freedom, but the great promise of it is that traveling we are born again and able to return at moments to a younger and more open kind to self. Yes, he is not denying the fact, he is not saying that कि traveling करने पे कोई danger नहीं होते, कुछ चिंताएं नहीं करनी होती, करनी होती है, लेकिन उसी प्रोसेस में हम अपने आप को एक और बार बॉर्न होते देखते हैं, एक और बार हम फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिलता है। ऐसा लगता है कि अब हम अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे अपने रूल्स के हिसाब से, ठीक है, लिविंग माई लाइफ माई ओन रूल्स, ऐसे करके जो भी स्टेटमेंट होता है। ट्रैवलिंग इज अ वे टू रिवर्स टाइम। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो यू आर नॉट मूविंग इन फॉरवर्ड, यू आर एक्चुअली मूविंग बैकवर्ड। बैकवर्ड कहने का मतलब आप एज के हिसाब से पीछे जाते हो, क्योंकि आपका माइंड रिफ्रेश होता है टू अ स्मॉल एक्सटेंट, छोटे एक्सटेंट के लिए, बट स्टिल, एंड मेक अ डे लास्ट अ ईयर और एटलीस्ट 45 आवर्स। एंड ट्रैवलिंग इज एन ईजी वे ऑफ सराउंडिंग आवरसेल्व्स एज इन चाइल्डहुड विद व्हाट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखो, जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हो, ठीक है, या बड़ी सी प्लेसेस आप घूम के आते हो, तो उसके बारे में कितने दिन तक गाते रहते हो, है ना, वही चीज आप बार बार रीलिव करते हो बाय रिवाइजिंग इट इन योर माइंड, है ना। मैं वहां गया था तो ऐसा हुआ था, मैं वहां गया था, 4 लोगों को बताते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग बैकवर्ड, है ना। और आपको लगता है कि आप वापस बचपन में आ गए, वो बचपना वापस आ गया, एंड बचपना के साथ साथ वो ब्लिसफुलनेस, जो चाइल्ड में इनोसेंस रहता है, वो आपके माइंड में आता है और आपकी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देता है। ओके, लैंग्वेज फैसिलिटीज, दिस क्रैकिंग ओपन फॉर व्हेन वी गो टू फ्रांस। हाँ, ट्रैवलिंग करते टाइम लैंग्वेज बैरियर आएंगे। फ्रांस में चले जाओगे तो वहां पे बोल पाओगे क्या वहां की लैंग्वेज? We often migrate to French and the more childlike self, simple and polite, that speaking a foreign language educes। कहने का मतलब, जब आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हो या फॉरेन सिटी में ट्रैवल करते हो जहां की आपको लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप कैसे शांति से बैठे रहते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, आप ज्यादा किसी से बात नहीं करते। जैसे एक सिंपल छोटा सा बच्चा नहीं होता जिसको पता नहीं होता कि क्या करना है, यू आर लाइक दैट चाइल्ड, यू बिकम दैट चाइल्ड, ठीक है। तो वही हमारे ट्रैवलर या हमारे राइटर बोल रहे हैं कि ट्रैवल करने से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एंड दैट विल गिव यू योर दैट विल इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। कहने का मतलब ट्रैवलिंग इज इक्वल्स टू मेंटल हेल्थ। जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग करोगे उतना ज्यादा आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा। ओके, इवन व्हेन आई एम नॉट स्पीकिंग पिडगिन
in English in Hanoi, I am simplified in a positive way and concerned not with expressing myself but simply making sense. ये क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, चलो वो हनोई घूमने का और वहां की उनको पिडगिन इंग्लिश नहीं आती है, तो कहने का मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो वो कुछ बता नहीं रहे हैं या वो कुछ कन्वे नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बाय बीइंग साइलेंट ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, वहां की जो चीजें वो फील कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये हमारे राइटर हमें कहना चाहते हैं कि जब भी हमें एक्सप्रेस करना होता है ना, तो इट इज नॉट कंपल्सरीली कि आप वर्ड्स यूज करो या वहां की सेम लैंग्वेज यूज करो। बाय योर एक्शंस, बाय योर स्टाइल यू कैन स्टिल एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, सो ट्रैवल फॉर मेनी ऑफ अस, अभी क्वेश्चन आता है, इज अ क्वेस्ट, क्वेस्ट कहने का मतलब सर्च, so travel for many of us is a quest for not just the unknown but the unknowing. I at least travel in search of an innocent I that can return to me to a more innocent self. कहने का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग इज लाइक अलग जगह पे जाना जो कभी घूमे नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इनके लिए ट्रैवलिंग करना मतलब अपने पार्ट्स को, अपने बॉडी के वो पार्ट्स एक्सप्लोर करना जिससे वो कभी मिले ही नहीं है, ठीक है, जिनने वो कभी यूज किए ही नहीं है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करना, ये हमारे राइटर कहते हैं। I tend to believe more abroad than I do at home, which though precarious again can at least help me to expand my vision, and I tend to be more easily excited abroad and even kinder. कहने का मतलब घर पे जब वो रहते तो एकदम वैसी मोनोटोनस लाइफ की वजह से बहुत अजीबोगरीब हरकत करते हैं, बाहर भी वैसे ही करते हैं लेकिन एक काइंडर तरीके से। कहने का मतलब ये रिस्पेक्ट दिखाते हैं लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों के बारे में उनको नहीं पता और उनके बारे में लोगों को नहीं पता। And since no one I meet can place me, no one can fix me in my resume. I can make myself for better as well as of course for worse. If travel is notoriously a cradle for false identities, it can also at its best be a crucible for truer ones. कहने का मतलब यहाँ पे हमारे राइटर क्या कहते हैं, हमारे राइटर ये कहना चाहते हैं कि अब सिंस आई एम ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस जहां पे अननोन लोग हैं, तो वो नहीं मुझे बता सकते कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, या मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा अपने लिए। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग या तो फॉल्स आइडेंटिटीज, आप झूठ भी दिखा सकते हो अपने आप को, नहीं तो फिर अपने आप के लिए एक टेस्ट रख सकते हो जहां पे आपको अपने बारे में पता चल सके, ठीक है। When you travel different places, तो ये आपके लिए एक फॉल्स आइडेंटिटी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जहां पे आप झूठ बोल के भी अपनी जिंदगी जी सकते हो, नहीं तो फिर जिंदगी जीने का मतलब ट्रैवल कर सकते हो, लोगों के बारे में जान सकते हो, या अपने बारे में नहीं बता सकते हो, नहीं तो फिर अपने बारे में बता के आप अपनी ही कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज के बारे में जान सकते हो। इन दिस वे ट्रैवल कैन बी अ काइंड ऑफ मोनेटिसिज्म ऑन द मूव। ऑन द रोड वी often live more simply even when staying in a luxury hotel with no more possessions than we carry and surrendering ourselves to come. अब जब आप घूमने जाते हो तो क्या अपनी धन दौलत सब लेके जाते हो क्या, जो भी घर में पड़ा हुआ है सब उठा के जाते हो क्या? नहीं, you simply live a monk's life. आप ट्रैवल करते हो विद योर बेसिक नेसेसिटीज, जहां पे सिर्फ कपड़े होते हैं जो आपको डेली यूजेस लगेंगे, सोप, ब्रश, टूथब्रश, ये सब चीजें। तो लग्जरी होटल में रहने के बाद भी यू लिव अ सिंपल बेसिक लाइफ, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू आर सिंपली लिविंग अ लाइफ ऑफ अ मॉन्क। मॉन्क आपने देखे होंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो ऑरेंज का सैफरन कलर का कपड़ा जो पहन के घूमते हैं, उनकी लाइफ आप जीते हो। ऑल्दो आपके पास सारी चीजें, सारे पोजेशंस हैं, बट उनको पीछे छोड़ के आप आगे निकलते हो, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं। So this is what Camus meant when he said that what gives value to travel is fear. कहने का मतलब Camus क्या बोलते हैं कि ट्रैवल का मजा तभी आता है जब आपको डर लगता है ना कि डेस्टिनेशन क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होगी। वो जो डर है ना वो एक्चुअल ट्रैवलिंग का मीनिंग है। Disruption in other words or emancipation from circumstances and all the habits behind which we hide. मतलब जैसा
हम नॉर्मल लोगों को दिखाते हैं, वो सारी आदतें छोड़ के किसी भी जो कंट्रोल, हम जो अपने ही बर्डन में दबे रहते हैं, उससे फ्री होके जब हम वो ट्रैवल करते हैं, तब हमें असली मीनिंग पता चलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग. ओके, एंड दैट इज व्हाई मेनी ऑफ अस ट्रैवल नॉट इन सर्च ऑफ आंसर्स बट ऑफ बेटर क्वेश्चंस. एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपल ट्रैवल. आपको लग रहा होगा लोग कुछ जवाब ढूंढने के लिए ट्रैवल करते हैं, बट दैट इज नॉट द केस. लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? ताकि उनको और अच्छे क्वेश्चंस मिल सके और उस अच्छे क्वेश्चंस के वो और अच्छे आंसर्स फाइंड कर सके. आई लाइक मेनी पीपल टेंड टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेसेस आई विजिट एंड relish most the ones that ask the most searching questions back of me. कहने का मतलब हमारे राइटर बोलते हैं, मैं कभी भी जवाब ढूंढने के लिए ट्रैवल नहीं करता, इनफैक्ट लोगों से क्वेश्चंस पूछने के लिए ट्रैवल करता हूं, जो मुझे बदले में और अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं. ओके, The Ideal Travel Book, क्रिस्टोफर ईश्वरवुड once said, तो एक बुक का नाम था The Ideal Travel Book, जहां पे हमारे क्रिस्टोफर ईश्वरवुड क्या पूछते हैं या क्या कहते हैं? Should we perhaps a little like a crime story in which you are in search of something. मतलब ट्रैवलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे लगे एक क्राइम स्टोरी है. क्या है बच्चों? एक क्राइम स्टोरी जहां पे आप कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी ना किसी चीज का पीछा कर रहे हो. And is the best kind of something I would add if it's one that you can never quite find. और इसी फ्रेज में हमारे राइटर एक मीनिंग और डाल देते हैं, एक पार्ट और डाल देते हैं कि मजा तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें ढूंढना क्या है. मतलब तुम एमलेसली ट्रैवल करते जाओगे, तुम्हें डेस्टिनेशन कभी पता ही नहीं चलेगी, एंड यू विल एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ योर इनर सेल्फ दैट यू हैवंट बीन इवन नोइंग ऑफ. ओके, जिसके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीजें भी होती है, जो ऐसी कोई कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज भी थी मेरे पास. ठीक है, और वो चीजें आपको तभी पता चलेंगी बच्चों जब आप घर से कदम बाहर रखोगे एंड यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड. घर पे बैठे बैठे बोलोगे नहीं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर, आई विल वॉच द व्लॉग वीडियोस, उसमें कोई मजा नहीं है. एक बार असली ट्रैवल करके देखो. ओके, सो यहाँ पे अब तक आपने देख लिया होगा, यहाँ पे हम जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट फिजिकल ट्रैवलिंग, दैट इज आवर मेंटल ट्रैवलिंग, जो हम अपने बारे में ही जानने के लिए कर रहे हैं. वी आर एक्सप्लोरिंग पार्ट्स ऑफ आवर ओन rather than the world. Okay, I remember, in fact, after my first trip to Southeast Asia more than a decade ago, how I would come back to my apartment in New York and lie in my bed, kept up something more than jet lag, playing back in my memory over and over all that I had experienced, and paging wistfully through my photographs and reading and rereading my diaries as if to extract some mystery from them. तो वो बताते हैं जब इनने पहली ट्रिप की थी अपनी, कहां पे की थी? साउथ ईस्ट एशिया में. एंड उस ट्रिप को करने के बाद जब वो न्यूयॉर्क आए तो ही रिमेम्बर द टाइम कि कैसे जेट लैग के वजह से, टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से जो जेट लैग होता है उसकी वजह से वो अपने मस्त बेड पे लेटे हुए थे, एंड ही वाज रिवाइविंग दोज मेमोरी that he had lived in Southeast Asia. मतलब वो अपने ही लाइफ के पास्ट में चले गए थे एंड उन पल को वापस जी रहे थे कि कैसे उन्होंने डायरीज लिखी थी, बार बार वो फोटोग्राफ्स देख रहे थे एंड कैसे उनकी मेमोरीज फ्रेश हो रही थी जैसी वो डायरीज या अपनी फोटोग्राफ्स देखते थे. ओके, anyone witnessing this strange scene would have drawn the right conclusion, I was in love. और अगर उनको उस टाइम ऐसे कोई फोटोग्राफ देखते हुए, उस फोटोग्राफ पे जो वो स्माइल दे रहे थे, अगर कोई दूसरा इंसान उनको देखता तो वो सिंपली क्या बोलता, क्या कंक्लूजन कर लेता कि भाई ये तो प्यार में. ओके, कहने का मतलब बीइंग इन लव इज लाइक ट्रैवलिंग अलोन. ओके, जब आप ट्रैवल करते हो ना तो वही फीलिंग्स आप फील करते हो जब आप लव में होते हो. So, when we go abroad, is that we are objects of scrutiny as much as the people we scrutinize, and we are being consumed by the cultures we consume as much on the road and when we are at home. तो हमारे
राइटर क्या बोलते हैं कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो लोग हमें उतने ही अजीब नजरों से देखते हैं। स्क्रूटनाइज कहने का मतलब जब आप किसी को ध्यान से देखो, जितना हम लोगों को घूर के देखते हैं, हम उनके कल्चर्स के बारे में उतना ही जानते हैं जितना वो हमसे हमारे कल्चर्स के बारे में जानते हैं, अब चाहे वो कोई भी जगह हो। ओके, at the very least we are objects of speculation and even desire who can seem as exotic to the people around us as they do to us। तो आप जब नई जगह पे जाते हो तो आपके लिए ऑल्दो इंसान आपने दुनिया भर देखे, लेकिन नई जगह पे जाने के आपको वो लोग नए लगते हैं, है ना। आपके लिए लगता है यार ये कहां से आ गए एक्सोटिक स्पीशीज, ये बंदा कहां से आया, है ना। अगर एक महाराष्ट्रियन पंजाब स्टेट में चला जाए, है ना, अब अगर वो नवारी साड़ी पहने उन सूट का कुर्ता पहनने वालों के बीच में, तो होगा ना बेटा, थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आप स्पेक्यूलेशन वाले ऑब्जेक्ट बन गए, जहां पे लोग आपको ही देख रहे हैं कि यार ये कहां से आया, कैसा आया। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि जब हम अब्रॉड में जाते हैं ना तो लोग हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं एंड हम लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कि दोनों को, क्योंकि ये टू वे रोड है, दोनों को एक दूसरे नए नए दिख रहे होते हैं। All in that sense believed in being moved as one of the points of taking trips and being transported by private as well as public means, all saw that ecstasy tells us that our highest moments come when we are not stationary and that epiphany can follow moments as much as it precipitates it। अब यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन दी गई है, अब मैं आपको एक सिंपल वे में मीनिंग बता देती हूँ। हमारे राइटर क्या कहना चाहते हैं कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज नॉट सिर्फ मूव करना या मूवमेंट शो करना, हमारा जो माइंड है वो एक अलग जोन में ही चले जाता है, जहां पे हर चीज चाहे वो कितनी सिंपल क्यों ना हो वो हमें एस्टेसी दे रही होती है। एस्टेसी कहने का मतलब एक हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ओके, हर चीज से हमें खुशी मिल रही होती है। जब भी आप घूमने जाओ, किसी पुरानी जगह पे जाओ, लेकिन अपने घर को छोड़ के जाओ, हर चीज आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, चाहे वो कितनी सिंपल क्यों ना हो। वो सिंपल सा सनसेट, उसके आगे छोटे से ट्रीज, बुशेस, सी, वो जो आप नॉर्मली देखते रहते हो अपने डिवाइसेस में, अपने फोन में, अपने टीवीज में, एंड व्हेन यू फील दैट थिंग एक्चुअली, जब वो ब्रीज आपके फेस पे हिट करती है, तो वो जो इमोशंस होते हैं ना बेटा, वो अनडिस्क्राइबेबल होते हैं, ऐसा हमारे राइटर कहना चाहते हैं। ओके, तो जितनी जल्दी वो, मतलब जितनी जल्दी प्रेसिपिटेट, मतलब वो मोमेंट जो है आप इतनी जल्दी लिव नहीं करते जितने आपके मेमोरी में वो जिंदगी भर रहते हैं। When you go to a McDonald outlet in Kyoto, आप देखो, आपको ये एग्जांपल देखिए समझाते हैं। जब आप Kyoto, that is a place in Japan, जब आप वहां के मैकडोनल्ड्स में जाते हो, you will find teriyaki mac burgers and bacon potato pies। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? teriyaki mac burgers and bacon potato pies, ठीक है। That is a special type of Japanese mac burgers. The placemats offer maps of the great temples of the city and the posters all around broadcast the wonders of San Francisco। आप देखो, जब भी आप जाओगे उस सिटी में, क्योटो में, तो वहां पे जो भी मैट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे जो भी पिक्चर्स लगे होते हैं, वहां पे आपको सिटी के ग्रेट ग्रेट टेम्पल्स पे जाने का रास्ता बताया गया होगा, मैप्स पे बताया गया होगा, ठीक है। एंड मोस्ट क्रूशियल ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल यंग पीपल ईटिंग देयर बिग मैक्स with baseball caps worn backwards and tight 501 jeans are still utterly and inalienably Japanese in a way they move, they nod, they sip their oolong teas and never be mistaken for the patrons of a McDonald's outlet in Rio, Morocco and Manguana। कहने का मतलब मैक के जो आपने कहते हैं आउटलेट्स हैं, ओके, मैकडोनल्ड्स की जो आउटलेट्स हैं वो अलग अलग जगह के हैं, लेकिन आप कहीं पे भी जाओ, लोग अलग अलग, जापानीज वाले जापान वाले मैकडोनल्ड के आउटलेट में खाएंगे, मोरक्को वाले मोरक्को में, लेकिन जब आप वहां के जापानीज को मैक बर्गर खाते हुए देखोगे तो आप वैसा ही पाओगे जैसे लोग मोरक्को में बैठ के मैक बर्गर्स खाते हैं, या रियो में बैठ के, या मैनगुआ में बैठ के मैक बर्गर्स खाते हैं।
जगह अलग अलग है, लेकिन लोगों की जो फीलिंग्स है, लोगों की जो इमोशंस है, लोगों के जो थॉट्स हैं, वो काइंड ऑफ सेम है, ठीक है। डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज बट यूनाइटेड बाय मैकडॉनल्ड्स आउटलेट, ऐसा कहने का मतलब है। These days a whole new realm of exotica arises out of the way one culture colors and appropriates the products of another। कहने का मतलब क्या कि आप देखो अलग अलग देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी चीजों को प्रमोट करे, दूसरे देश के कल्चर्स को भी अपनाता है, अपने देश के कल्चर्स को भी शेयर करता है। देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स जब हम ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब मैकडॉनल्ड सिर्फ एक जगह तो सिर्फ वैसे ही नहीं है, हर जगह आपको मैकडॉनल्ड्स देखने को मिलेंगे एंड काइंड ऑफ सेम फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ताकि लोगों को सेम फीलिंग आए, जो कि चाहे वो रियो में हो, मोरक्को में हो या जापान में हो। The other factors complementing and exciting all of this is people who are more and more themselves as many-tongued and mongrel as cities like Sydney or Toronto और Hong Kong। कहने का मतलब ट्रैवलिंग का एक मजा तो आपको किससे मिलता है? लोगों से, जिनको अलग अलग भाषाएं पता होती हैं, जहाँ पे अलग अलग डॉग्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड्स के, उनके पेरेंट्स कहीं सिडनी, कहीं टोरंटो, नहीं तो हांगकांग के। I am in many ways an increasingly typical specimen, if only because I was born as the son of Indian parents। आप देखो यहाँ पे mongrel कहने का मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके जो एंसेस्टर्स हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं, तो वो अपनी लाइफ की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं कि ये खुद एक स्पेशल स्पेसिमेन है। क्यों? क्योंकि ही वॉज बॉर्न एज द सन ऑफ इंडियन पेरेंट्स। इनके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे? इंडियन थे, इसलिए इनके नाम में क्या सरनेम है? अय्यर। ओके। इन इंग्लैंड, ऑल्दो इंडियन पेरेंट्स थे, लेकिन बॉर्न कहां पे हुए थे? इंग्लैंड में। मूव टू अमेरिका एट 7 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए थे एंड कैन नॉट रियली कॉल माई सेल्फ एन इंडियन, एन अमेरिकन और एन इंग्लिश मैन। और इस चक्कर में उनकी आइडेंटिटी खो गई, क्योंकि वो खुद को ना इंडियन बोल पाते थे, ना इंग्लिश मैन बोल पाते थे, ना अमेरिकन बोल पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स कहीं और के थे, वो बॉर्न कहीं और हुए थे और रह कहीं और रहे थे। I was, in short, a traveler at birth for whom even a visit to the candy store was a trip through a foreign land where no one I saw quite matched my parents' inheritance और माय ओन। तो ये क्या बोलते हैं कि ऐसा हो गया कि कहानी कि ये जन्म से ही ट्रैवलर हो गए, इनके पेरेंट्स कहीं और के, ये बॉर्न कहीं और के, रहने वाले कहीं और के। तो कहने का मतलब जब ये बचपन में या अपनी लाइफ में कभी कैंडी स्टोर में भी जाते थे ना, तो उनको लगता था कि वो कोई नए ट्रिप पे आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां के सारे जो लोग थे वो उनके जैसे दिखते ही नहीं थे, उनसे अलग हुआ करते थे, क्योंकि वो तो वहां के नेटिव थे, ये तो एकदम मिक्सअप स्पेसिमेन बन चुके थे। तो कैंडी स्टोर में भी जाना इनके लिए ट्रिप जैसी कहानी हो जाती थी। Besides, even those who don't move around the world will find the world moving more and more around them। कहने का मतलब अगर आप नहीं घूम रहे दुनिया, तो दुनिया तो आपके अराउंड कंटिन्यूसली घूमती ही रहती है। Walk just 6 blocks in Queens or Berkeley and you are traveling through several cultures as in many minutes। Get into a cab outside the White House and you are often in a piece of Addis Ababa। कहने का मतलब ये बर्कली की कहानी बताते हैं कि वहां के जो स्ट्रीट्स होते हैं ना, आपके हर स्ट्रीट चेंज करने पे आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, वहां पे अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे। वहां से एक व्हाइट हाउस से आप कैब उठा लो तो आप एक अलग ही दुनिया में आ जाओगे, ऐसे लगेगा कि अचानक से आपकी दुनिया बदल गई। एंड टेक्नोलॉजी टू कंपाउंड्स दिस समटाइम्स डिसेप्टिव सेंस ऑफ एबिलिटी so that many people feel they can travel around the world without leaving the room through the cyberspace or CD-ROMs, videos and virtual travel। कहने का मतलब फिजिकल ट्रैवल की तो ये बात ही कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोग घर पे बैठे बैठे भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं। जो लोग ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्चुअल रियलिटी जो होते हैं,
उसके वजह से जो लोग घूम नहीं पाते हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो फील करने के लिए कि दुनिया घूमने पे कैसा लगता है. सो देयर आर मेनी चैलेंजेस इन दिस, ऑफ कोर्स, इन व्हाट इट सेज अबाउट एसेंशियल नोशंस ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी एंड लॉयल्टी, एंड इन द वरी दैट एयर कंडीशनड प्योरली synthetic version of places may replace the real thing, not to mention the fact that the world seems increasingly in flux, a moving target quicker than our notions of it. कहने का मतलब अब टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है कि लोगों के नोशंस भी बहुत ज्यादा, थॉट्स भी जो है, माइंडसेट्स भी है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं. कहने का मतलब ये जो फिजिकल ट्रैवलिंग का मजा है ना बेटा, वो वर्चुअल रियलिटी या टेक्नोलॉजी की वजह से लोग घर पे ही बैठ के ले लेते हैं, इसलिए अब लोग ट्रैवलिंग करना बंद कर रहे हैं. कहने का मतलब टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है. बट देयर इज फॉर द ट्रैवलर एट लीस्ट द सेंस दैट लर्निंग अबाउट होम एंड लर्निंग अबाउट अ फॉरेन वर्ल्ड कैन बी वन एंड द सेम थिंग. तो जैसे हमने ट्रैवलर की बात की थी पहले, टूरिस्ट की बात की थी, ट्रैवलर की बात की थी, कि अगर आप किसी भी जगह जाओ, ट्रैवलर को कैसा लगता है कि यस, every facility is present at every site where he roams. Okay, जहां जाता है वो अपना घर बसा लेता है, क्योंकि ट्रैवलर का कोई assumptions लेके नहीं चलता है कि यहाँ पे वो होगा कि नहीं होगा. हर जगह को वो एक समान मानता है और उसी तरह से वो एंजॉयमेंट करता है. All of us feel this from the cradle. बचपन से ही हमें ये पता होता है. And know in some sense that all the significant movement we ever take is internal. कहने का मतलब आपको चलना किसने सिखाया? ऐसे जबरदस्ती किसी ने पैर खड़े किए थे ना? नहीं. वो मूवमेंट जो थी, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, क्रॉल करना, वॉक करना, रन करना, वो सब कहां से, उसका जो फायर है बेटा, वो कहां से उठा था? इंटरनली उठा था, है ना. We travel when we see a movie, strike up a new friendship, get held up. बहुत सारे reasons है. कभी हम मूवी देख के ट्रैवल करते हैं, कभी हम किसी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने के लिए ट्रैवल करते हैं. Novels are often journeys as much as travel books are fictions, and though this has been true since at least as long ago as Sir John Mandeville's colorful 14th century accounts of a far east he had visited, it's an even more shadowy distinction now as genre distinction join other borders in collapsing. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि नोवेल जितनी ज्यादा जर्नी बुक्स, जहां पे आपको लगता है नोवेल इज अ जर्नी, उतना ही आप मान सकते हो कि ट्रैवल बुक्स आर फिक्शंस. यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स दिए हैं यूजिंग ट्रैवल बुक्स एंड नोवेल्स. ओके, और यहाँ पे एक ये बुक मेंशन करते हैं किसकी? सर जॉन मैंडेविल की, जो कि विच इज रिलेटेड टू समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग. ओके, travel then is a voyage into that famously subjective zone, the imagination, and what the traveler brings back is and has to be an ineffable compound of himself and the place, what's really there and what's only in him. तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो ट्रैवल करना होता है, that is actually a journey into imagination, और जब वो imagination से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को अलग मानता है और अपनी दुनिया, उसकी जो है, उसका पर्सपेक्टिव जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है अपने सराउंडिंग्स के लिए. एंड सिंस ट्रैवल इन अ सेंस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी ऑफ परसेप्शन एंड इमेजिनेशन, द टू ग्रेट ट्रैवलर राइटर्स फॉर मी टू whom I constantly return are Emerson and Thoreau, the one who famously advised that traveling is a fool's paradise and the other who traveled a good deal in Concord. तो इनके हिसाब से इनके लिए जो ट्रैवल बुक के भगवान जो हैं वो दो इंसान है, इमर्सन एंड थॉरियो. कहने का मतलब ट्रैवल इज नथिंग बट एन इंटरप्ले बिटवीन परसेप्शन एंड इमेजिनेशन, कि परसेप्शन क्या होता है और उसका खेल इमेजिनेशन के साथ कैसा होता है. देखो, एक ही चीज को इमेजिन करने के लिए भी अलग तरीके होते हैं क्योंकि आपका परसेप्शन अलग अलग होता है. तो यही बोलते हैं कि ट्रैवल इज नथिंग बट इंटरप्ले
प्ले ऑफ परसेप्शन एंड इमेजिनेशन। और इससे इनको दो राइटर जरूर याद आते हैं जो इनको बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज एमर्सन एंड थॉरियो। और जिसमें एमर्सन ने एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोवर्ब दिया था या सेइंग दिया था, दैट वाज ट्रैवलिंग इज अ फूल्स पैराडाइज। क्यों बोला जा रहा है फूल्स पैराडाइज? क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको कुछ पता ही नहीं होता आगे क्या होता है, तो उसके लिए ऐसा मानते हो कि आपके लिए वो जन्नत है। ओके, सो बोथ ऑफ देम इंसिस्ट ऑन द फैक्ट दैट रियलिटी इज आवर क्रिएशन। दोनों क्या बोलना चाहते हैं कि जो हम फील कर रहे हैं, जो हम रियलिटी देख रहे हैं, वो हमारे द्वारा ही बनाई गई है, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड दैट वी इन्वेंट द प्लेसेस वी सी एज मच एज वी डू द बुक्स दैट वी रीड। कहने का मतलब हम जनरली वैसा ही सोचते हैं जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं और इमेजिन करते हैं, अपनी इमेजिनेटिव पावर को थोड़ा यूज करके जैसे हम चीजों को परसीव करते हैं वही हमारी रियलिटी होती है। व्हाट वी फाइंड आउटसाइड आवरसेल्व्स हैज टू बी इनसाइड आवरसेल्व्स फॉर अस टू फाइंड इट। जो चीज आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप उसको ढूंढ पाओ, उस पर ट्रैक कर पाओ। और as Sir Thomas Browne sagely put it, we carry within us the wonders we seek without us. There is Africa and her prodigies in us. कहने का मतलब क्या कि देखो यहाँ पे ना अब ये बहुत एशियन टाइम में चलेगा जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था, जब ह्यूमन बनना शुरू हुए थे। सो यू ऑल नो दैट ह्यूमन स्टार्टेड इवॉल्विंग फ्रॉम अफ्रीका। ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि जो भी हम ढूंढ रहे हैं ना बेटा वो एक्चुअली हमको ढूंढ रहा है और उसको हमारे बिना वो चीज मिल ही नहीं सकती। हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे बिना उन्हें मिल ही नहीं सकती। तो ये जो शुरुआत है ढूंढने की, एम पाने की, ये प्रूफ करने का कि ये जिंदगी क्यों है, वो तब से शुरू हुई थी जब ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ था। ह्यूमंस इस धरती पे पधारे थे, दैट इज द प्लेस, दैट इज अफ्रीका। वो वहीं से चालू है और हर एक इंसान में वो कहीं ना कहीं एक डॉट एक स्पेक है। सो इफ मोर एंड मोर ऑफ अस हैव टू कैरी आवर सेंस ऑफ होम इनसाइड अस, we also, Emerson and Thoreau remind us, have to carry with us the sense of destination. कहने का मतलब होम्स की फीलिंग समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा what is destination and what does traveling carry for you and what does it mean for you. The most valuable Pacifics we explore will always be the vast expanses within us. जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे आयरनी है, ट्रैवल वर्ड को यूज करके ही डज नॉट एग्जैक्टली मीन्स जो ट्रैवलिंग हम करते हैं, बट द जर्नी यू कैरी इनसाइड योर माइंड, ठीक है, दैट यू एक्सप्लोर योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी जो आपको पहले पता ही नहीं था, योर केपेबिलिटीज। यहाँ पे ट्रैवलिंग का मतलब वो है। The most important, all the most important northwest crossings, the thresholds we crossed in the heart. तो ये अपने expands की बात कर रहे हैं, बट बाहर नहीं बेटा, अपने माइंड के expands, अपने माइंड के एरिया को एक्सप्लोर करने का बोल रहे हैं, जिसका रास्ता कुछ हार्ट से होते हुए जाता है, something related to that. The virtue of finding a gilded pavilion in Kyoto is that it allows you to take back more lasting private golden temple to your office in Rockefeller Center. कहने का मतलब जब आप क्योटो के टेम्पल्स को विजिट करते हो, देन यू रियलाइज योर ओन कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन यू कैरी अ गोल्डन टेम्पल इन योर ऑफिस जो कि एक्चुअली दूसरे देश में। सो अदर कल्चर्स को जानने के टाइम पे आपको अपने कल्चर का भी इंपॉर्टेंस पता चलता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू बिलीव इन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फॉलो, वो सारी चीजें आपको पता चलती है। And even as the world seems to grow more exhausted, our travels do not, and some of the finest travel books in recent years have been those that undertake a parallel journey matching the physical steps of pilgrimage with the metaphysical steps of questioning. तो वो क्या बोलते हैं कि भले दुनिया ऐसा लगे कि अब वो खत्म होती जा रही है, अब वो एग्जॉस्ट होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में ट्रैवल बुक्स वही
चलती हैं जो पैरेलली दो चीजों को लेके चले। एक तो पिलग्रिमेज, दैट इज जिस पे आप बिलीव करते हो, वो जर्नी टुवर्ड्स दैट सुप्रीम थिंग, ठीक है, जो सुप्रीम के पास जो आपकी जाने की इच्छा होती है, दैट इज। एंड दूसरा जो मेटाफिजिकल स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग कि क्यों जाना है, कैसे जाना है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये दोनों चीजों को जो लेके चलती हैं वही ट्रैवल बुक्स अच्छी कहलाती हैं। और क्रॉनिकलिंग मतलब विनिंग अ ट्रिप टू द फारदेस्ट रीचेस ऑफ ह्यूमन स्ट्रेननेस, जहां पे ह्यूमन जा भी नहीं सकता वहां पहुंचना, ओके, विच फीचर्स अ जर्नी नॉट जस्ट टू अ रिमोट एट ऑल इन द पैसिफिक। दिस इज अ बुक, दिस इज द लाइंस विच आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स। तो वही आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताए गए हैं। But to a realm where people actually see light differently, कहने का मतलब ट्रैवल उस जगह पे करो जहां पे आपको अलग अलग लोग मिले, जहां पे एक ही चीज लोग अलग अलग तरीके से परसीव करें एंड उसको समझ सके। The most distant shores we are constantly reminded lie within the person asleep at our side, कहने का मतलब जो हमें नामुमकिन लगता है वो एक्चुअली हमारे आसपास ही होता है। जिसको पाना हम बोलते हैं यार नहीं ये तो बहुत दूर है, इसको हम पा नहीं सकते हैं, इसको हम समझ नहीं सकते हैं, वो एक्चुअली हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। दिस इज जस्ट द पावर ऑफ परसेप्शन एंड इमेजिनेशन दैट यू हैव टू डेवलप, ताकि आप रियलिटी को समझ पाओ। सो ट्रैवल एट हार्ट इज जस्ट अ क्विक वे टू कीपिंग आवर माइंड्स मोबाइल एंड अवेक। दिल के रास्ते पे ट्रैवल करना है जस्ट अ वे टू कीप अवेक योर माइंड, टू कीप योर माइंड fresh. As Santayana, the heir to Emerson and Thoreau, with whom I began, wrote, this is a wisdom in turning as often as possible from the familiar to the unfamiliar। कहने का मतलब होशियारी क्या है कि जो आप जानते हो उसको अनजाना करना। इट कीप्स माइंड निम्बल, माइंड को एकदम फ्रेश रखता है, ठीक है, टेंडर रखता है। इट किल्स प्रेजुडिस, भेदभाव खत्म करता है। एंड फॉस्टर्स ह्यूमर, माइंड में कॉमेडी, ह्यूमर, फनी चीजों को घर देता है। फॉस्टर मतलब संभालता है। कहने का मतलब माइंड को टेंशन चाहिए कि फनी सिचुएशन चाहिए माइंड को फ्रेश करने के लिए, फनी सिचुएशन चाहिए, तो दिस व्हाट इट डज, व्हाट हु डज इट, द ट्रैवलिंग पार्ट, ओके, कि ट्रैवलिंग आपके माइंड को क्या कर देता है। Romantic poets inaugurated an era of travel because they were the great apostles of open eyes। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जो रोमांटिक पोएट्स थे एक टाइम के एरा के, वो भी ट्रैवलिंग पे लिखने लग गए क्योंकि दे कोइंसाइडेड द थीम। जैसा आप प्यार में फील करते हो वैसा ही आप ट्रैवलिंग में फील करते हो। द इमोशंस आर सेम बट जस्ट इट्स द सिचुएशंस आर डिफरेंट। बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर ऑफन वैगबॉन्ड्स। बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहने का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वो बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज में होते हैं ना, ऐसा ऑरेंज सैफरन कलर का कपड़ा लपेटे हुए है ना, लेह लद्दाख में आपने देखा होगा, तिब्बत में आपने देखा होगा, दोज आर एक्चुअली वैगबॉन्ड्स। वैगबॉन्ड्स मतलब जिनका कोई घर बार नहीं होता, दे जस्ट कीप ट्रैवलिंग विदाउट नोइंग द destination, in part because they believe in wakefulness। क्यों? क्योंकि इस तरह से हमारे माइंड को वो सारी चीजें पता चलती है that why are we, how is the world created and why is the world created। they get to know the answers of those questions which are not answerable। जिसको हम आंसर कर ही नहीं पाते, उनके आंसर्स उनको मिल जाते हैं while doing the activity। and if travel is like love, it is in the end most because it's the heightened state of awareness in which we are mindful, receptive, undimmed by familiarity and ready to be transformed। कहने का मतलब क्या बोलते हैं कि माना कि लाइफ जो है या ट्रैवलिंग जो है, इट्स लाइक लव। जब आप लव में होते हो, आप एक हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन में होते हो, आपकी इमोशंस अलग ही लेवल में होते हैं, जहां पे आपको छोटी मोटी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है एंड यू परसीव योरसेल्फ एज द सुप्रीम, कि मैं हूं तो कर ही सकता हूं और मैं चेंज भी हो सकता हूं। सो दिस इज why the best trips, like the best love affairs,
नेवर रियली एंड। कहने का मतलब जो आपके जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार होगा ना, दैट इज लाइक योर बेस्ट ट्रैवलिंग ट्रिप्स। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि वो दुनिया में कभी खत्म ही नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में वो कभी फीलिंग्स खत्म ही नहीं होंगे। ओके, सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल चैप्टर रिटन बाय पीको अय्यर अबाउट ट्रैवलिंग, जो कि एक ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन थे, जहां पे उन्हें अलग अलग ट्रैवलिंग की एंड मैजिक्स ऑफ ट्रैवलिंग आपको ये समझाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।